एंड गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू सक्सेस स्टोरी। आज की हमारी जो गेस्ट है आपने ऑफकोर्स टीजर में देख लिया होगा। अ, आज का जो पर्पस है, आज का जो सेशन है, उसका एक पर्पस है कि टैलेंट और ताला होता सभी के पास है, पर उसे अनलॉक करने का टाइम लगता है, उसे अनलॉक करना पड़ता है। वंस यू अनलॉक योर ताला, you are into your home sweet home. But once you unlock your talent, you are welcome into this beautiful world of opportunities. करेक्ट। आज की जो हमारी गेस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो उसके ऊपर साक्षात सरस्वती माँ का हाथ है। शी इज डेफिनेटली अ गॉड गिफ्टेड। जब उन्होंने अपना टैलेंट अनलॉक किया तो देश में ही नहीं, विदेश से भी उन्हें दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया। तो गाइस, टैलेंट अनलॉक करने के लिए यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। शी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, a melodious singer, soulful Sheetal. Hi Sheetal. Hi Sheetal, welcome back. So first of all, I would like to thank Success Stories for inviting me for the interview, and a special thank to Kaushal Sheth and Hardik Rugani. Thank you. Thank you, thank you, thank you. शीतल, एक्चुअली ये आज का हमारा भी प्लेजर है कि हम आप जैसे टैलेंट को आज यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाए, आपका हम इंटरव्यू ले पा रहे हैं, सो वो हमारा भी प्लेजर है। एंड लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग दिस अ क्वेश्चन कि हाउ everything started, how did you started singing, and how did you decide it? Okay. So I have inherited art from my parents from childhood. And from childhood, mornings in my house used to be like something with the music, whether it be a light music, it be stavan, bhajan, or any kind of garba. So every morning, whenever we used to get up, there was something or the other music being played, as my father was a complete music person. And the environment was so, मतलब घर का माहौल ही ऐसा था संगीत में. So it made me I could say it was a God gifted thing to me, and फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला होगा, सो बचपन से ही वही माहौल मिलता गया मुझे. And then at the age of 10 in my school I gave my first live performance in Independence Day, जहाँ जैसे ही मेरा गाना खत्म हुआ, देशभक्ति का गाना, तो सभी के आंखों में आंसू आ गए. एंड एवरीबडी complimented me that you were amazing, you have a lovely voice. So and then slowly school people started sending me to various competitions where I won prizes, and one memorable among them was Samanvay Sankalp Rashtriya Gaan Pratyogita, where I presented for all over India competition for Rashtriya Gaan, and I won the prize over there. So that was a proud moment for me as well as my school. And then later on in 2003, I entered into a college, that is Nagindas Khanwala College. And I had many of my friends who were senior to me, but they knew that I sing well, because somewhere from my school only, and so everybody knew, and they introduced me to the forum of Nagindas Khanwala College of Singers Forum. And then I started again the same thing, that I was sent to different intercollegiate competitions from my college, and I won many prizes for college. And among that, the biggest was Mumbai University competition, where I reached till state level. Somehow I couldn't go beyond that, but till state level I reached in Mumbai University singing competition. Then in 2005, as soon as I entered my degree college, I
felt that I should make this as my profession. If I could attract so many people through my singing, then I should make it my profession too. So in 2005, one day, our family friend Nimesh Shah, he is a very good professional Jain singer. He came to our house, and my dad just told him that my daughter, she has learned music and she want to pursue it as a career. So how to do it? So he asked me to sing a song, and I presented a song in front of him. And then he said, આનો અવાજ તો બહુ સારો છે. She sings very good. And she's in suls, she's in tal. Do one thing, you send her with me. And from there, my journey of chorus started. I used to do chorus Oh, with him in all his shows. So in 2005, it was an initial year. So hardly in a month, I could do 2 or 3 shows I used to get. But as soon as I started singing, even my co-friends, other organizers, musicians started realizing that no, the girl is new, but she sings good. So they started promoting me to other organizers that she's new, but she sings good. So by 2006, 2007, it was a time where I used to do 2 or 3 shows a day Okay. in my chorus journey only. But after okay. some years, after 4 years of my chorus journey, in 2000, somewhere in 2010, I started with a semi-lead singing. So I Oh, always felt that I have that potential inside me. So why not try to go a step ahead? So I started with a semi-lead singing. So I used to get 1 or 2 songs in the entire show with my chorus singing. oh, And people started appreciating that too. All my co-singers and organizers and all started appreciating that you have good confidence, you have good potential, you should try for lead. And in 2012, I started with my lead singing, and from 2012 to 2020, there is no turning back. Okay. जर्नी बहुत ही लंबी है एंड बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ है एंड इनफैक्ट यू हैव रिमेम्बर्ड फ्रॉम ईयर बाय ईयर एंड डेफिनेटली उससे पता चलता है कि आपने हर एक चीज पे कितना ध्यान रखा है. एक यही चीज को मैं और एक चीज आगे लेके जाता हूँ कि स्टार्टिंग से किसी ने आपको पूछ लिया कि भाई सिंगिंग अच्छा करती है, चलो इसको चांस देते हैं, बट यू मस्ट हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ. तो आपने ये सिंगिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसा क्या स्किल सीखा कि जिससे आपको ये करियर में अपॉर्चुनिटी मिले? मतलब कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा Yes. कि भाई चलो प्रोफेशनली जाना है तो लेट मी लर्न समथिंग. तो उसके बारे में अगर कुछ बता पाए. The first skill I developed कि मैंने various form of singing सीखा. जैसे I learned classical singing from शशि निगम जी. Then I learned light music from Dharmanshu Rawal ji and Sonini Mishra ji. And newly composed songs also I learned from Avinash Hande ji. Then the second thing what I adopted was doing riyaz regular. आपको कोई भी चीज Oh, पानी हो तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है. मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो रियाज करता है वही राज करता है. तो आपका कोई बात. रियाज डेली होना चाहिए अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है. एंड द थर्ड थिंग which is I always think that which is made for me and my all colleagues always tell me that is your nature is your future. So अगर आपका Okay. नेचर अच्छा है, अगर आपका काम शायद 19-20 हो तो लोग चला लेंगे, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे, करेक्ट. लेकिन उसके लिए आपका नेचर अच्छा होना बहुत जरूरी है. एंड समथिंग इन योर नेचर विच विल इंक्लूड इज आप हम्बल होने चाहिए, आप काइंड होने चाहिए. यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी वन इन योर टीम, वेदर वो कोई साउंड ऑपरेटर हो, वेदर वो साउंड इंजीनियर हो, या कोई भी को सिंगर हो, कोरस सिंगर हो, बैक वोकल्स हो, एनी वन. पर आपका रिस्पेक्ट, या वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, पर आपका रिस्पेक्ट हर एक जन के लिए इक्वल होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, बिकॉज
टीम वर्क के सिवा आप कुछ भी नहीं हो. So correct. so without their support, you are not going to succeed. So definitely, you should have a good nature. So this is what I always tell everyone, that your nature is your future. It is going to decide your future. And Uh, one more thing I will add, that is always stay updated with whatever is new in your industry. So आज कोई नया गाना मार्केट में आया है तो आप उससे अपडेट रहिए. So always stay updated with all the new things, all the new techniques, everything in your field. And whenever you perform it extempo. Do not read your songs, or you should be so prepared when you enter into a lead singing or something, that you should be always extempo, which will increase your interaction with the audience. right. So, and the last is be positive in any situation. एकदम एक वर्ड आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोड्यूस किया कि भाई नेचर इज योर फ्यूचर. कि भाई आप चाहे काम में 19-20 हो चलेगा, बट इफ यू आर नेचर वाइज गुड देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा. राइट. एंड ऑफ कोर्स जो आपने बोला कि आपकी जो अपब्रिंगिंग जो हुई है, अभी आप सुबह उठ ही रहे हो और वो भी मेलोडियस मॉर्निंग के साथ ही उठ रहे हो, तो दैट इज अ वेरी गुड सिंगर इन द मेकिंग. ऑडियंस आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको शीतल से पूछना हो, या ऑफ कोर्स कोई भी आपकी सॉन्ग Request हो. रिक्वेस्ट हो, चाहे वो गुजराती बॉलीवुड कोई भी हो, तो यू कैन प्लीज राइट ऑन दैट विद द कमेंट सेक्शन, एंड विल मेक श्योर कि शीतल एटलीस्ट उसको कुछ मुखड़ा या दो लाइनें गा पाए. Sure, Yeah, sure. definitely. So, Sheetal, what made you pursue the career in entertainment? Oh, very good question. First of all, I would say that I came or I pursued this profession because singing was my passion, the very first thing. Right. But along with that, I feel that I was creative and I wanted something which could bring my creativity out, whether it be any form of art. But as singing was my passion, I brought my creativity out with my singing. So this is the first thing which I believe that made me pursue this profession. The second thing was, I am not a 9 to 5 job person. I don't like anyone to rule me. So I never wished Right. that I should run in the same race of that 9 to 5 monotonous job. जहां आप सुबह से रात तक रोज काम करते हो, आप दूसरे दिन जाते हो, आपको और वही काम मिलता है, आप बस जो आपको कोई कुछ दे रहा है उसी को आप करते जा रहे हो फॉलो, एंड दैट इज वेरी मोनोटोनस. So to be different from others and to be different from that race of people, I pursued this as my Correct. profession. Oh, Okay, so you do not, of course, believe in machine life. No. I want to be my own boss. Whether I want to work or whether I don't want to work, that I will decide on my own. Yes, yes, own definitely, boss. definitely. Of course, अभी तो ये मतलब जो आपकी जो थिंकिंग जो है कि आप जो है कि एक सेल्फ मेड लेडी हो, अपने तौर पे आप अपना काम करती हो, अपने तौर पे आप अपनी जिंदगी जीते हो, तो आप अपने आप को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी जो आपका जो स्टैंड है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर यू क्लासिफाई योरसेल्फ है? कि आपने सीखा क्लासिकल है बट नाउ यू आर इनटू एंटरटेनमेंट, तो व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर यू आर? I feel that I am a versatile singer because I sing every genre like Sufi, Qawwali, Bhajan, or any folk, and even different languages like Gujarati, Marwadi, Marathi, Hindi, as well as Kutchi. So I define myself as a versatile singer, and I can reach to people through my voice. So that's the thing. I can just say that I am a versatile.
ओके ओके। अच्छा, शीतल, हम लोग आगे बढ़े उसके पहले हम लोग यहाँ पे आपके सिंगिंग के बारे में बात तो कर ही रहे हैं। क्यों ना हम थोड़ा सा आपके आवाज की झलक दे दें। और वो झलक देने के लिए एक रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम आशीष कि सिंग अजीब दास्तान है ये। तो ओके। एक आप आपकी आवाज की झलक भी दे दीजिए ताकि ऑडियंस को यहाँ पे पता भी चले कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट दिस मेलोडियस सिंगर। श्योर श्योर। And then we'll move on to the next question. आई विल जस्ट स्टार्ट द ट्रैक, जस्ट गिव मी अ Yeah, मिनट। yeah, yeah. कौशल, तब तक तुम गा दो। मैं गाऊंगा ना तो यहाँ पे जितने भी लाइव है वो भी भाग करेंगे। इज इट बेटर कि जिसका जो काम है वही करेंगे। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न हो समझ सके न हम। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। Wow, wow, शीतल, थैंक यू। superb. I literally had a goosebump right now. कि भाई एक जेन्युइनली एक बात बताओ कि when you are talking, जब भी आप बात कर रहे हो यहाँ पे और जो लेवल पे आप जो सिंगिंग कर रहे हो ना वो एक अलग ही वॉइस लेवल जा रहा है। मतलब डेफिनेटली वो वॉइस ही अलग है। एंड मैंने ऑडियंस को भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम लोग ने टीजर में भी शीतल के पास से एक सॉन्ग गवाया है जिसमें हमने थोड़ी सी झलकी दी है। डेफिनेटली वो शीतल का पूरा रिकॉर्डेड सॉन्ग भी हम अपलोड तो करने ही वाले हैं। शीतल, ये सिंगिंग जो है आपके कोई फैमिली में और कोई मतलब पहले से गा रहा था कि और यू डायरेक्टली गेट इंट्रोड्यूस टू सिंगिंग, मतलब अपने आप ही पैशन आया या कैसा था वो? पैशन तो था ही, लेकिन ऑब्वियसली मतलब मेरे डैड की पूरी फैमिली जो है सब भी बहुत अच्छा गाते हैं। भले मतलब दे सिंग इन सम मंडल और देरासर का मंडल और समथिंग देयर, बट माय डैड वाज अ गुड सिंगर एंड ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज स्मॉल स्मॉल शोज एट दैट टाइम। राइट। तो फैमिली बैकग्राउंड में my brother is a good singer, my mother is also a good singer, and my father is also. So Oh, it ओके, is, I told you that it is inherited from my parents. द फैमिली ऑफ गुड सिंगर्स। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग बैठे हो कहीं बात कर रहे हो और अचानक कि आप अपने एक साथ गाना चालू कर दिया? इतने सारे सिंगर्स घर में ही है तो। या मतलब अंताक्षरी खेलना इज वेरी नॉर्मल इन अवर हाउस, चाहे बाहर से कोई भी बुआ आ जाए ये आ जाए, तो अंताक्षरी तो हमेशा चालू हो ही जाती है घर में, आई because जस्ट all my इमेजिन हार्दिक buas and all are कभी also हम very good singers. हार्दिक कभी हम इसके साथ अंताक्षरी गाने में बैठे तो हमको लगता है हम सिर्फ सुनते ही जाएंगे, हम हमको तो कुछ आएगा ही नहीं सीरियसली। मौका ही नहीं मिलेगा कुछ गाने का। राइट राइट। राइट। अच्छा, एक एक क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ कि सी आप स्टेज शोज भी कर रहे हो, परफॉर्म भी करना ही चाहते हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट ऑडियंस की तरफ से कहीं भी कुछ इंसिडेंट होगा जो आपको लाइफ टाइम ऐसे याद रह गया रहेगा? मतलब किसी ने कुछ तारीफ की होगी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ रहेगा या वियर्डेस्ट थिंग? बहुत सारी तारीफ मिली है। मैनी पीपल ड्यू टू माय अपीयरेंस बोलो कि फिर गुजराती गरबा जब शुरू होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं मिनी फाल्गुनी पाठक। So, Oh, and somewhere she is my idol always. So it is pleasure to hear yeah. that. And 90% of the shows I have always got super compliments from all my audience ever. They always say that you Right. have that feel जो आप लोगों के दिलों तक पहुंचती है।
सो दैट इज Right. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आप फील से गाते हो और वो फील हम तक पहुंचती है. व्हेन इन सम देरासर और समवेयर आई परफॉर्म फॉर रात्रि भावना, at that time they people Okay. said that we literally felt that અમે ભગવાન સાથે જોડાઈ ગયા, मतलब हम भगवान के साथ जुड़ गए आपका गाना सुनते सुनते. So Right, such right, right. compliments I have got a lot of time. यस यस शीतल, दैट इज डेफिनेटली बोलते ना एक 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 टॉप लेवल का कॉम्प्लीमेंट है, टॉप नॉच की परफॉर्मेंस जो आप रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसे ऊपर है. जैसे कहा जाता है ना कि म्यूजिक जो है वो फीलिंग्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, बट सिंगर्स जो होते हैं उसी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करते हैं. तो ऑफकोर्स आप उसी फीलिंग्स के आप शब्द है जो आपके थ्रू आप बयां कर रहे हैं. बट यस शीतल, डेफिनेटली यू आर गोइंग वेरी गुड. एंड ऑफ कोर्स जो आपने बोला कि आपको ऐसा मिनी फाल्गुनी का भी एक टाइटल लोग एड्रेस करते हैं, तो व्हाट इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज? As far as I considered every performance has been best, क्योंकि मैंने हर परफॉर्मेंस के पहले बहुत मेहनत की है उसके लिए, तो हर परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है. पर कुछ मेमोरेबल अगर मैं बता सकती हूँ उसमें से, तो वन इज आई परफॉर्म्ड भजन संध्या एट अंबानी हाउस फॉर धीरूभाई अंबानी's फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी with Falguni Pathak and Oh. her team. Second, I could say all the international tours I have done, like Muscat, USA. जैसे इंडिया में every now and then you get functions, but in abroad they have particular days for that function, so they value singing like anything. So I have got lot of compliments from them. So those tours were really memorable for me. And I have performed in front of Murari Bapu and then Rakesh Bhai, who is from Srimad Raj channel. Yeah. So when I performed in front of Rakesh Bhai on Mahavir Jayanti, so at that day he gifted me with a book and a CD and his blessings. Even Murari Bapu gifted me a shawl as a blessing. So and through my profession, I think I have met so many gurus and so many saints, and I have sung in front of them. So it is like it is I'm blessed by Ma Saraswati. Otherwise, we are nothing to do this. But Ma Saraswati blessings are there. करेक्ट करेक्ट, यस डेफिनेटली. हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी वही बोला था कि आपके ऊपर डेफिनेटली माँ सरस्वती का हाथ है. एंड ऑफ कोर्स आप टैलेंट हो, लेकिन टैलेंट के साथ आपको कहीं ना कहीं आपका लक, आपका डेडिकेशन आपको फेवर कर गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर रीच्ड हियर. आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए उसके पहले बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें रिक्वेस्ट है कि एक आध गरबा सॉन्ग तो हो ही जाए. एंड जब आपने बोला कि आपको फाल्गुनी के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी आ गया, परी हूं मैं सॉन्ग गाने के लिए. सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दैट एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sure. आज मैं तो आई नजरों के जाने के जहां से, ओ नाई में तो लाई बहारों के अफसाने भी बहार से. ओ नाना मुझे छूना ना, दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं. सुपर सुपर सुपर. एक गुजराती में कोई गरबा सॉन्ग. हार्दिक गरबा खेलने जाता है कि नहीं? खेलने तो जाता नहीं हूँ, बट डेफिनेटली ये
आज तो गरबा खेल ही लूंगा। शीतल गाएंगी तो एक आध दो स्टेप अपन दोनों भी खेल लेंगे साथ में। डेफिनेटली क्या है डेफिनेटली। कि इस साल क्या पता शायद हमें लॉकडाउन ही गरबा खेलने मिले। ये तो तारे कल्याणी रे माँ तू तारे कल्याणी रे माँ जाजू त्या जुग माया जाजू त्या जुग माया जाजू त्या जुग माया जाजू त्या जुग माया हे तू तो शंकर घेर पति रानी रे माँ तू तो शंकर घेर पति रानी रे माँ जाजू त्या जुग माया जाजू त्या जुग माया जाजू त्या जुग माया जाजू त्या जुग माया વાવ સુપર. સુપર સુપર વન્સ અગેન જે લોકો જે કહે છે કે તમને તમારા અવાજથી જે કનેક્શન જે આવે છે એક જે કહે ને કે રૂહ શાંત થાય છે, મન શાંત થાય છે, ડેફિનેટલી ખોટું નથી કહેતા. દે આર રાઈટ એન્ડ દે આર રાઈટ 1000%. જે તમારી અવાજ જે છે જે એક કનેક્ટિવિટી લાવે છે ને દેટ ઇઝ ઓસમ, માઇન્ડ બ્લોઇંગ. અને thank you so આ અને ઓફકોર્સ કોણ ના જોડાવા માંગે આવા અવાજથી. ડેફિનેટલી ઓલ વુડ હેવ ટુ ટેક અ પીસ ઓફ ધ વોઇસ ઓફ શીતલ. બટ ગિવન અ ચાન્સ, જો તમને ચાન્સ મળે તો who would you like to collaborate with? I would like to collaborate with any wedding planners or event planners, corporates હોય કે concept show organizers or any jingle or ad composers and definitely જે હર singer નું dream હોય કે music directors of the industry. I would like to collaborate with any one of them. કરેક્ટ 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 શીતલ, ડેફિનેટલી તમને ઓફર્સ તો આવશે જ, એમાં તો કોઈ વાંધો જ નથી. બીકોઝ ધ વર્સેટાલિટી વિચ યુ હેવ શોન, જે તમે ગરબા ગાયા, then you sang Pari Hu Main, that was at another level. Then you sang that Ajit Darta. એ વર્સેટાલિટી તો તમારામાં જોવા જ મળે છે. સો આઈ એમ શ્યોર અબાઉટ ઇટ. તમે સિંગિંગ પ્રોફેશનમાં છો તો ડેફિનેટલી કોઈને ને કોઈને તમે ફોલો કરતા હશો. સમજો આ મારો આઈડિયલ છે, તો ઇઝ ધેર એનીવન વિચ યુ થિંક એઝ એન આઈડિયલ, ઓર તમે કોઈને એડમાયર કરો છો એવી રીતે? Yeah. But before going to my idol, I would say that I admire the most my parents, that is my mom and my dad. Because I feel that without their sacrifices, I would haven't achieved anything in my life. Here I would like to mention a small incident that in those days when I used to learn singing, my mother had a severe pain in her knees, and doctors had strictly said that she should not overburden or overwork or do overwork, which will increase the pain. But just because my classes won't get disturbed, she used to take me. मतलब मेरे जहाँ classes थे वहाँ पे पूरा ऐसे चढ़ान चढ़ के जाने वाला रास्ता था और पूरा चढ़ान चढ़ के मुझे क्लासेस जाना पड़ता था. So just because my classes won't break, she took that pain and she used to come with me for my classes. और उनकी वजह से मेरा क्लासेस कभी वो मिस नहीं हुआ या मुझे छोड़ना नहीं पड़ा उसको. So she took that pain. So I would say that she just ignored her pain for my success. And secondly, if I admire somebody, is my dad. He has played a very important role because in 2005 when I started my career as a singer, तब बहुत सारे लोग मेरे डैड को ये बोलते थे कि लाइक इन गुजराती वे से कि ગાવું વગાડવું એ આપણું કામ નથી.
she should Right. study or do some job or something. And I was the first female in my family or in my in-laws family who worked, who uh, tried to work out, or who was working Correct. outside. So my father, they many of the people told them from the family that she should not do this because it's a male industry. It's more of a Right. male industry. So many of people, but my father strongly supported me, and he always said that no, I know what my daughter is doing, and I want her to live her dreams, to pursue what Correct. she feels correct. So he Yeah. supported me, and many a times my father, after doing whole day his office work, he used to come with me because अभी ऐसा है कि आपका शो 10 बजे खत्म, 10 बजे is the time limit. But in those times, कभी 12, 1, 2, there was no time limit for the shows. So he used to come with me for my show, and he used to sit there till my show gets over. कभी कभी I have just noticed कि even he feels sleepy over there, but still taking that pain and coming with me just because I can flourish, I can go ahead in my career, and I don't lose any opportunity. He took all that pain, and I always say that chamatkar ke bina namaskar nahi. That is very true, because the people who used Correct. to tell at that time कि लड़की है नहीं भेजो ऐसा वैसा, today those people only, when I go to a family gathering, and they are so happy to see that, oh, you have sang, you went for Navratri to US, okay, Muscat में किया perform, अरे she is a celebrity singer or she is a star singer. So if that time my dad wouldn't have supported me, then आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती. And apart from my family, I would like to thank more two people. One is my brother, Ashish Daria, who is a partner in my Naman's music. And he has Correct. supported, I could say that he is the strongest pillar of Naman's music. Sometimes Oh. by somehow, if I couldn't make some things, he is always there to take Naman's music to the best. And lastly, Right. I would mention that I can't forget my husband. He is a strongest supporter to me, because after marriage, to allow you to pursue your career first of all is the best thing. And along with that, he never stopped me for anything. Like even I want to learn anything new, or I want to go out of India for my shows, or that's the long tours for 2 months, 3 months, or but he never stopped me. He supported me in each and everything. So I am highly thankful to my husband too for that. This was my family, but apart from family, if you ask in the industry whom I admire, then I would always say that the first in my list would always be Falguni Pathak. After that, I Right. also admire Lata ji, then Shreya Ghoshal, Kailash Kher. So there are Right. many favorite singers of mine, but a combination of a good singer with a good personality. So that is why I Right. admire Falguni ji the most. करेक्ट 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 शीतल डेफिनेटली जो आपने नाम लिया एक कैलाश खेर इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज आई लाइक ज्यादा तो मुझे म्यूजिक के बारे में इतना नॉलेज है नहीं बट द वे ही गोज फ्रॉम द लो पिच टू हाई पिच और वो जो फ्लुएंटली जाता है ऑल्सो दलेर मेहंदी सो उन उन दोनों का आवाज डेफिनेटली मुझे बहुत एंड सुखविंदर सिंह यस ये तीन लोग मुझे बहुत पसंद है कैलाश खेर सुखविंदर सिंह एंड दलेर मेहंदी बिकॉज वो जो फ्लॉलेसली जो लो पिच से हाई पिच जाते हैं ना ताकत है उनके आवाज कभी भी मुझे आदत है या सो ऐसा कुछ मैजिक है आपके आवाज में उनके उनके जैसा Okay, so I'll sing the song. I'll sing this without a track only. ओके या श्योर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा
की शाबाश कलंदर दमादम मस्त ओए। कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी वाह वाह वाह, सुपर एकदम शीतल। डेफिनेटली आज मुझे उन तीनों की भी याद दिला दी। यू डेफिनेटली मेंशन कि आपके एडमायर आपने मॉम डैड एंड ब्रदर, एंड आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिली। ऐसा कोई डिफिकल्ट टाइम आपको याद है कि जिससे आपने ओवरकम किया हो? मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि आप गा ही नहीं पा रहे हो या कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो, बट somehow यू मैनेज एंड दैट वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है? नो नॉट अ सच इंसिडेंट करेक्ट because करेक्ट। So I always think that you have to be punctual in your work and yeah but the show must go on मतलब तबीयत कभी खराब होती है या डेफिनेटली वैसा बहुत बार हुआ है कि कभी तबीयत अभी रात को शो करके आए और सुबह अर्ली मॉर्निंग शो में जाते हैं तभी आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती बट एट दैट टाइम यू कैन नॉट डिनाई show must go on and I have personally experienced कि एक बार जब मेरी हालत कितनी भी बुरी हो लेकिन एक बार जब मैं स्टेज पे बैठती हूँ तो देर इज सम मिरेकल ऑफ माँ सरस्वती की शो ऐसे निकल जाता है कि पूरे शो तक पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट पहले मेरी तबीयत इतनी खराब So that is the thing. What you are asking, I can justify that ये चीज मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस की है। तो नाउअडेज अगर कभी मतलब कभी होता है ऐसा कि कभी कुछ बीमार हो या कुछ हो तो आई ऑलवेज से कि नहीं नहीं स्टेज पर व्हेन माय मॉम आस्क मी दैट तबीयत अच्छी नहीं है कैसे करेगी तो आई ऑलवेज से कि नहीं नहीं स्टेज पर बेसिस नहीं એની મેતે થઈ જશે डेफिनेट। એટલે આ એક જે સ્ટેજની એનર્જી જે છે એ તમને યસ યસ 100% કરી છે। એટલે કૌશલ એવું હોય ને ક્યારે બી હવે ખબર પડે ને કે શીતલ બીમાર છે એવું હોય છે તો ડોન્ટ ટેક હર ટુ ધ સ્ટેજ। So you arrange a show for me and I will be all right. ડેફિનેટલી અમે લોકો જોઈએ હવે if the time comes good and if the dreams come true डेफिनेटली कोई तो ऑर्गेनाइज આપણે જરૂર કરશું। जरूर कर। Yes, yes, બટ શીતલ થિંક કે સિંગિંગ એ તમારો સૌથી યુઝફુલ ટેલેન્ટ છે જે તમને અત્યારના અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યો છે। એક સવાલ મારો એ છે કે વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ યુઝલેસ ટેલેન્ટ યુ હેવ? મને ખબર છે કે હું ગાઈશ ને અહીંયા બહાર તો કોઈ ઊભું તો નહીં જ રે, ઇનફેક્ટ મને લાફા મારશે। ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ યુઝલેસ ટેલેન્ટ આઈ હેવ। I cannot find any useless talent in me because art I have I have pursued each form of art like I'm a good painter, people tell I'm a good cook, so if useless talent I don't find any talent useless. You can name any sport. તમને ક્રિકેટ રમતા આવડતું છે કે one useless talent I would say that is technology. So I don't like to be much on Facebook and Facebook or Insta or something like that. So technology is one thing which is a useless talent I could say. I need someone to help me for that. डेफिनेटली शीतल, नॉट टू वरी। હાર્દિકની હેબિટ છે કે હંમેશા ટ્વિસ્ટર સવાલ એના હોય જ છે। સો ડેફિનેટલી ફોર ઓડિયન્સ ધીસ વોઝ હાર્દિક ટ્વિસ્ટર્સ क्वेश्चन फॉर यू वन एंड अगेन सक्सेसफुली उसने अपने गेस्ट को फ्लैबरकास्ट कर लिया। राइट शीतल, after being in a career for so many years, is there some advice which you have received from your seniors or તમારે એવી કોઈ એડવાઇસ છે કે તમારા જુનિયર્સ ને કોઈને તમારે આપવી છે? Yeah, definitely.
the first and foremost advice I would say, which I have received from my parents, that be honest in your work. आप जो भी काम करो अपनी नीति से करो, कोई बेईमानी मत करो अपने काम में, बिकॉज नीति से किया हुआ हर काम आपको सक्सेस तक लेकर ही जाएगा. So it is like God also help them who help themselves. So जो भी काम आप करो वो नीति से करो, हार्ड वर्क करो उसके लिए. आपको जो भी आपका गोल है उसे पाने के लिए उसके पीछे आप मेहनत कीजिए. The second, I would like to say that always give your client something which they cannot imagine. जब आपको कोई शो देते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें कोई एक चीज आप ऐसी दीजिए जो उनके इमेजिनेशन के बाहर हो. So that will definitely make your clients happy, and those compliments will make you satisfied more. And Okay. other thing, if I would say the same thing again, that wherever you work, respect everyone and stay calm when you work with your colleagues or co-artists or co-singers, anyone over there. So please stay calm, stay positive whenever you do any work, and respect everyone. Apart that somebody respects you or not, that is none of your concern, but you show your respect to others. And even if you face any failure in your life, just don't get depressed. Start to try it again, Right. because failure is a stepping stone to success. If God has given you something to try, that means he wants you to reach to that level. शायद उसके लिए कोई एक अटेम्प्ट में पहुंचेगा, कोई 5 अटेम्प्ट में पहुंचेंगे, लेकिन आप पहुंचोगे जरूर, तभी भगवान ने आपको वो रास्ता बताया है. So it is like Okay. failure is always a stepping stone to success. Do your hard work and always try to work with the current situation. For example, अभी आप जैसे देख रहे हो कि सब जगह पे लॉकडाउन है, तो सोशल गैदरिंग्स इज नॉट देयर, कि बर्थडे पार्टीज इवेंट हम नहीं कर पा रहे. तो हमने एक नया उसके लिए शो रेडी किया, नया कॉन्सेप्ट रेडी किया, दैट वाज ऑनलाइन शो. We have done Correct. 5 to 6 online show in this month, where we Right. have done various birthday parties, anniversaries. So my concern is that joy should never be postponed. Situation कुछ भी हो, लेकिन आप इस समय में Right. ऑनलाइन शो, शायद आपके घर पे फंक्शन होगा तो आपके घर पे गेस्ट, आप अगर 200 गेस्ट को बुलाते हो तो शायद 100 ही पहुंच पाएंगे, लेकिन इन ऑनलाइन शो चाहे आपके गेस्ट इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके उस इवेंट के अंदर. तो जितने Right. भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि प्लीज डू नॉट पोस्टपोन योर सेलिब्रेशंस. वी आर हियर फॉर यू. वी डू ऑनलाइन जूम पार्टीज, वी डू YouTube lives, we do Facebook live streaming, everything for you. So joy should never be Correct. postponed. करेक्ट करेक्ट डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम्स में से ही अच्छा मौका निकल के आता है. एंड दैट इज व्हाट यू हैव सीन इन दिस थिंग. अब यही कि मैं यही इसी पॉइंट पे आने वाला था कि चेंज इज द नीड ऑफ द आवर. एंड आपने जो ऑनलाइन का जो सेलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया है, मैं उसी के ऊपर आने वाला था कि बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ, ये मतलब किस तरह से, मतलब थोड़ा और अगर आप डिटेल में अगर बता पाए कि नमन म्यूजिक का ये जो ऑनलाइन सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल अगर आप दे पाए. ओके, तो नमन्स म्यूजिक में हम ऑनलाइन जैसे बर्थडे पार्टीज करते हैं, आपकी एनिवर्सरी पार्टीज करते हैं, विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एज वेल एज गेम शो, जिसमें आपके जितने भी गेस्ट हैं वो हम उनको जूम पे आईडी क्रिएट करके उनको जूम पे सभी को लाते हैं, और फिर हम उनसे डिफरेंट चीजें, यानी कि कुछ गेम्स खिलवाते हैं उनसे, और वो सब वैसे हम पूरी पार्टी कंडक्ट करते हैं उसमें. और जैसे आपकी वेडिंग्स हो या संगीत हो या एनीथिंग, तो वी हैव स्टूडियो ओवर हियर. So in that studio
वी परफॉर्म ओवर देयर, और उसकी हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो जिससे आपके अच्छा, जितने भी गेस्ट जहाँ पे भी हैं वो सभी आपका इवेंट देख सकते हैं उसमें। ओके, ओके। ओके, सो दिस राइट, इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन शोज। डेफिनेटली ये भी मौका लेने जैसा है कि टू सी कि हाउ ऑल दिस वर्क्स। अच्छा, एक और एकदम बेतुका सवाल है। मैं और हार्दिक तो सिंगर है, बाथरूम सिंगर। आर यू स्टिल अ बाथरूम सिंगर? आर एम आई अ बाथरूम सिंगर? हाँ, आर यू Yes, स्टिल yes. अ बाथरूम सिंगर? I said that singing is my passion. तो आप बाथरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, कहीं पे भी सिंगिंग तो चालू ही रहता है। मतलब डेफिनेटली योर हस्बैंड मस्ट बी अ गुड लिसनर। जब देखो तब आपका सिंगिंग सुनते रहता है एंड ही इज नॉट गेटिंग बोर्ड ऑफ Yes, yes. इट। बट 100%. why should नहीं, उनको बोर होने की जरूरत नहीं है, उल्टा ही मस्ट बी गेटिंग एंटरटेन्ड के भाई शीतल से सुनने का मौका डेफिनेटली, हर डेफिनेटली। किसी के पास नहीं है, तो एंड अच्छा उनके है पास 24 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग है। ये। ओके, सो ये जो आपने जो बोला कि अगेन ये जो आपने चेंज लाया है एक ऑनलाइन शोज का, तो इसके अलावा अगर कोई चेंज आप अपनी इंडस्ट्री में अगर आप देखना चाहेंगे, तो व्हाट दैट चेंज वुड बी? Okay, so I would like to change the approach of audience towards music. जैसे मैं एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि लता जी जो इतने सालों से परफॉर्म कर रही है स्टेज पे, शी टेक्स 2 प्लेट्स एंड साड़ी पहन के भी वो परफॉर्म करती है वहां पे, एंड इन दिस वर्ल्ड नो वन कैन बीट हर इन सिंगिंग, नो वन कैन बीट राइट, हर इन परफॉर्मेंस। सो लोग वो तो इतने अच्छे से एंजॉय करते हैं, बट नाउअडेज पीपल्स अप्रोच is like people or organizers, they think that the singer should be a good performer or the singer should look good, but मेरा कहना ये है कि ये सब तो सेकेंडरी है, लेकिन आप सिंगिंग को पहला प्रायोरिटी दीजिए। आप जब भी कोई करेक्ट, शो लेते हैं या ऑडियंस जब भी सिलेक्ट करती है, एज यू आर यू नो आप सिंगिंग को एक साइड में रख देते हैं एंड बाकी सब, बिकॉज जब से सारे रियलिटी शोज आने लगे हैं तो पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट जो अच्छा डांस करता है वो सिंगर अच्छा होता है, बिकॉज अ सिंगर टेक्स अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ रियाज टू रीच दैट लेवल, एंड जब उसके साथ इस बेसिस पे कभी कभी ना इंसाफी हो जाती है वैसे सिंगर्स के साथ। सो आई वुड लाइक टू tell my audience or whoever is watching this that please give singing a priority and presentation, or see, everyone will be presentable in live show, it's nothing like that, but performance को आप थोड़ा पीछे रखिए और सिंगर को आगे रखिए। करेक्ट, That is करेक्ट। the मतलब change I डेफिनेटली want. जो चीज के लिए आप वो टैलेंट को देख रहे हो, वो चीज Yes. को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, एंड दैट इज व्हाट शीतल इज गिविंग अ मैसेज। डांसर है तो डांस करेगा, सिंगर Yeah, है तो गाना exactly. गाएगा, Exactly. एक्टर है तो वो परफॉर्मेंस देगा। एक्टर है तो वो परफॉर्मेंस देगा। मतलब आप सिंगर के पास या हर एक टैलेंट के पास सब चीज एक्सपेक्ट ना करो। Exactly. एंड नो वन इज ऑलवेज मल्टी टैलेंटेड, सो Yeah. एक जो माइंडसेट जो आप बदलने की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स, एक आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है कि माइंडसेट लोगों का चेंज होना चाहिए। ओके, सो जैसे आपने बोला कि आप नमन म्यूजिक का एक ऑनलाइन का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रमोट कर रहे हैं, उसके अलावा आफ्टर द ड्यूरिंग या आफ्टर द 2 और 3 मंथ्स का टाइम कुछ प्लान वगैरह कुछ आपने लेआउट डाला हुआ है, आपने आपने कुछ फ्यूचर प्रिपरेशन कुछ की हुई है? Yes, yes, of course. First of all, I would like to make Naman's Music a big brand in music industry. So उसके लिए हम काफी सारा एडवर्टाइजिंग एंड काफी सारे मीटिंग्स वगैरह विथ बिग बिग इवेंट प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स हम करते रहते हैं कि जिससे एक दिन नमन्स म्यूजिक विल बी इन नेक्स्ट 5 years अ टॉप brand or big brand in entertainment industry.
and I Correct. want to reach maximum audience through my voice in each Right. and every part of country in India or out of India. I mean to say in entire world. मैं I just want that as a singer मैं दुनिया के हर कोने में मेरी आवाज पहुंचे. So this is the dream and for which I am working. Okay. Okay. So जैसे राइटली लता जी है सेड कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, उसी तरह आपका भी ड्रीम डेफिनेटली सक्सेसफुल रहे, ये मेरी और हार्दिक की प्रे रहेगी. एंड नमन म्यूजिक भी आ गया है, ये भी हमारी ये डेफिनेटली हमारी प्रे रहेगी. ऑफ कोर्स. एंड हम डेफिनेटली यही चाहेंगे कि वी वेर द फर्स्ट वन. मतलब 5 साल के बाद हम गर्व से कहेंगे कि भाई हमने शीतल के साथ बैठ के बात की थी. और या वी वर द फर्स्ट वन जिसने हमने सेलिब्रिटी के साथ हमने इंटरव्यू लिया था. ओके. सो अभी आज का हमारा जो कन्वर्सेशन है काफी इंटरेक्टिव रहा. आपने आपकी लाइफ के बारे में, आपकी अपनी जर्नी, सिंगिंग के अलावा की जो आपकी जो टैलेंट है, जो यूजफुल है, जो यूजलेस, सबके बारे में काफी डिटेल में बताया. बस अब इट्स टाइम कि मैं और कौशल अभी रिलैक्स करें एंड वी वुड मतलब रिक्वेस्ट यू कि आप एक छोटी 5-1 मिनट की एक मेडली आप इस तरह से प्रेजेंट करें आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, सो दैट सबको याद रहे कि हु इज शीतल, द मेलोडियस, द ब्यूटीफुल सिंगर. थैंक यू. मैं मेडली तो नहीं, पर मैं आपको एक अच्छा सा डांस नंबर यहाँ से सुनाती हूँ, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने अपने घर में डांस कर सकते हैं इसे सुनकर. डांस कर रहे हो? ठीक है. हार्दिक हैज 2 लेफ्ट फुट्स एक्चुअली. तो हार्दिक यहीं बैठे बैठे डांस करेगा और मैं भी फिलहाल यहीं बैठे बैठे डांस करूंगा. क्योंकि उसकी लेफ्ट में मैं बैठा हूँ. Is it audible? या La 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 la, dee ra 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 la la. ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना. आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना. ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना. सुपर. थैंक यू शीतल. एंड इसी नोट पे यहाँ पे एंड करते हैं. गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सक्सेस स्टोरी. चाहे जिसे उसे पाए प्यार वो यार के जो